Hello everyone, I am Navneet Chabra. In this session, we will discuss the polity section of Anubhav 3. If you have attended the discussion of science and technology with me, you already know the structure of the session. Just to recap, there are going to be 3 dimensions of the session. Firstly, we will discuss the core concepts involved in the question. Secondly, उस core concept के around पे जितने भी peripheral themes हैं, we will also talk about that. Thirdly, if there is any possibility of solving a question by elimination, logical elimination, we will also do that. But other than these 3 dimensions, we are also going to focus on a particular thing which we didn't talk about much in case of science and technology. See, if you ask me which subject is the most predictable in UPSC prelims, I'll go for polity. If I remove 1 or 2 years of exceptional paper, in most of the years, roughly 70% of the questions are predictable. At least the theme is predictable. अगर आप exact dimension pick ना कर सकें, but theme तो predictable होती है. They are basically either derived from the current affairs. Current affairs नहीं होता है, but current affairs से derive होता है. और secondly, they are extrapolation, they are extension of some theme of PYQ. So what we are going to do is, in this session I'll also tell you कि एक अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, what was the logic behind that, वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे PYQ से डिराइव हो रहा है या फिर अगर करंट से डिराइव है तो कैसे हो रहा है, so that you develop your own understanding and you are able to filter out what are the topics which are more important for this year, right? पढ़ना सब कुछ होता है, but at least आप अपनी अटेंशन जो है उन टॉपिक पे ज्यादा डिवोट कर सकते हैं, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हर क्वेश्चन में पहले मैं आपको स्टेटमेंट वाइज आंसर बताऊंगा ब्रीफली एंड देन वी विल स्टार्ट द डिटेल डिस्कशन. तो पहला जो क्वेश्चन है एक फंडामेंटल राइट के बेसिक कॉन्सेप्ट से है, बट थोड़ा अप्लाइड सा क्वेश्चन है दैट माइट हैव कंफ्यूज्ड सम ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं एंड दे आर आस्किंग कि इनमें से कौन सी कंडीशन है विच इन्वॉल्व्स वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. पहली कंडीशन कहते हैं अ प्राइवेट कंपनी रिफ्यूजेस टू हायर अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये नहीं है फंडामेंटल राइट का वायलेशन, ऑल्दो इट माइट सीम absurd, बट इट इज नॉट. A privately owned restaurant refuses entry to customer because they are transgender. ये violation है. A foreign religious preacher is prohibited from conducting a peaceful religious gathering. ये भी है. Parliament passes a law reserving certain state government jobs exclusively for individuals born in that state. ये भी violation है. So only 3 will be your answer. अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन लार्जर पिक्चर में कहां फिट हो रहा है. This is not a random question. So there are 2 contexts for this question. First of all, in 2023, Supreme Court said that Article 19 and Article 21, these fundamental rights are also available against the private individuals. This expanded the scope of these 2 articles significantly. कैसे हम बात करेंगे, but it was a huge development. Secondly, if you'll notice, अगर आप अभी जाएं इस सेशन के बाद, I'll advise that check all the questions that UPSC has asked from the section of fundamental rights. You will realize that although we study lot of nitty-gritty from fundamental rights, इतनी सारे judgments और सारी बातें पढ़ते हैं, but roughly 60 to 70% of the fundamental right questions are basically from classification of fundamental rights. क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट से क्या मतलब है? सो देयर आर 3 वेज इन विच वी क्लासिफाई फंडामेंटल राइट. एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, टोटल 6 कैटेगरी है और हर कैटेगरी के अंदर कुछ राइट है. जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है. राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक. Then comes right against exploitation 23-24. Then comes right to freedom of religion 25 से 28. Then cultural and educational rights 29-30. And then comes right to constitutional remedies. Right? अब ऐसा लगता होगा कि ये तो बहुत बेसिक सी चीज है. But if you'll notice, यहाँ तो मैंने 2 रखे हैं, इससे ज्यादा सवाल है. Just check this first check this 2017 question. Right? So in this they are asking कि जो right against exploitation है, which is a larger category, उस larger category के अंदर इसमें से कौन सी सब category of rights है, right? So you know कि abolition of untouchability जो है वो तो right to equality में आता है, ये cancel हो गया. Then you also know कि prohibition of protection of interest of minority जो है वो article 30 में आता है, right? अगर आप ध्यान से देखें 2020 में exact same theme पे question पूछा गया है. In fact the option itself got repeated. इसमें उन्होंने पूछा
कि इसमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है जो इनकॉर्पोरेट करती है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को, राइट? सो लार्जर थीम क्या है? कैटेगराइजेशन और उसका सब कैटेगराइजेशन, राइट? देन there is another way of classifying fundamental rights, which is fundamental rights which are only available to citizen and the fundamental rights which are available to both citizen and foreigner. ये तो हमने अच्छे से रट्टा लगाया हुआ है, राइट? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30. These are 5 fundamental rights which are only available to citizen. अगर आप देखेंगे तो ये भी एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, यूपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है. ऑल्दो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, बट द क्वेश्चन, द थीम दैट दे वर चेकिंग इज कि ये सभी को अवेलेबल है या सिटीजन को अवेलेबल है, राइट? सो अब आप देखें तो ये 2 क्लासिफिकेशन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है. देयर इज थर्ड वे ऑफ क्लासिफाइंग फंडामेंटल राइट व्हिच यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड टिल नाउ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स में तो नहीं, एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उस थीम पे अगला सवाल आएगा. वो इस साल आए, नेक्स्ट ईयर आए, वी डू नॉट नो, बट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क फॉर श्योर. एंड दैट इज द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट and the fundamental rights which are also available against the private individual. तो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट ऐसे हैं कि अगर स्टेट उसे वायलेट करे then we will say कि fundamental right has been violated. But if the same thing are being violated by a private individual then that's not a violation of fundamental right. तो अगर आप देखें तो जो सवाल अप्लाइड बनाया गया है that is actually mix and match of these things, right? इन्हीं डायमेंशन को मिक्स करके बनाया गया है. बट रिमेंबर ये वाला एस्पेक्ट जो है यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब क्वेश्चन के एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं. तो ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल वाला पार्ट है उसमें हम स्पेशल एम्फेसिस देंगे क्वेश्चन को समझने के बाद. सबसे पहला केस कहता है अ प्राइवेट कंपनी रिफ्यूजेस टू हायर अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हायर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 16. बट अगर आप रिकॉल करें आर्टिकल 16 क्या फंडामेंटल राइट देता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी for public employment. Public employment मतलब employment under the state. So it says that no citizen shall be discriminated for an employment under the state on the grounds, only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or residence. तो state discriminate नहीं कर सकता, right? But what about private party? ये आर्टिकल उसके बारे में कुछ नहीं कहता. So if a private organization discriminates for recruiting on the basis of religion, there is no fundamental right available. In fact, legal protection भी indirectly ही available है इंडिया में fundamental right के अलावा, right? And that is why if you will Google right now, आपको ये पता चलेगा ये इशू बहुत बार डिस्कस होता है कि अगर प्राइवेट पार्टी कोई डिस्क्रिमिनेट करती है so there is no fundamental right available. चलिए तो पहला तो वायलेशन नहीं है. Second comes privately owned restaurant refuses entry to a customer because they are transgender. Restaurant आर्टिकल 15 क्लॉज 2 अगर आप रिकॉल करें, सो इट सेज दैट नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड और शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड while accessing some of the public utilities like shops, public restaurant or places of public entertainment, right? या फिर एक road or well. So these kind of public utilities you cannot discriminate you cannot restrict someone from accessing. राइट? अब ये जो राइट अवेलेबल है तो सिटीजन को अवेलेबल, राइट? बट ये प्राइवेट पार्टी के भी अगेंस्ट अवेलेबल है. इट मींस इफ अ प्राइवेट रेस्टोरेंट ओनर प्रिवेंट समवन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड, इफ इट डिस्क्रिमिनेट्स, तब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है एंड दिस पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ रिट. फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट ओन्ड थिएटर है, मूवी थिएटर है, इफ दे रेस्ट्रिक्ट then also this person can go and file a writ in Supreme Court, right? So that is what we mean by a fundamental right being available against the private citizen. तो second तो है violation. Third पे आते हैं, a foreign religious preacher is prohibited from conducting a peaceful religious gathering. यहां पे आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड. सम स्टूडेंट्स थॉट कि ये जो है रिलीजियस गैदरिंग की बात हो रही है तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 19 क्योंकि वो पीसफुल असेंबली की बात करता है, राइट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई एक प्रीचर रिलीजियस गैदरिंग ऑर्गेनाइज करता है सो दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडेड, दिस फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन. प्रैक्टिस का प्रोफेस का मतलब टू ओपनली डिक्लेयर दैट आई हैव दीज रिलीजियस बिलीफ. प्रैक्टिस मतलब
रिलीजियस सेरेमनीज, रिचुअल्स, वर्शिप्स, ये सब परफॉर्म करना। प्रोपोगेट मतलब टू डिसेमिनेट वंस रिलीजियस व्यूज अमंग अदर्स। तो ये माना जाता है कि ये जो रिलीजियस गैदरिंग है, इफ अ प्रीचर इज अरेंजिंग दिस गैदरिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोपोगेटिंग वंस रिलीजन। सो अब अगर आर्टिकल 25 देखें तो आर्टिकल 25 तो फॉरेनर और सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है, राइट? सो दैट इज व्हाई अगर फॉरेनर को भी आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑब्वियसली इसमें कंडीशंस है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज रिटन कि इट्स अ पीसफुल गैदरिंग। तो अगर आप फॉरेनर को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इट्स अ वायलेशन। तो आपका थर्ड भी वायलेशन है। देन कम्स अगेन, सम स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड हियर। सो इट्स सेइंग कि पार्लियामेंट पासेस अ लॉ रिजर्विंग सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम बॉर्न इन दैट स्टेट। अगर आप देखें, ये भी आर्टिकल 16 से कवर हो रहा है, राइट? 16 की लैंग्वेज क्या थी? दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। ठीक, अब इसके नीचे एक सब क्लॉज कहता है दैट इफ पार्लियामेंट वांट्स, इट कैन पास अ लॉ एंड रिजर्व सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर द पीपल ऑफ दैट पीपल हैविंग रेसिडेंस इन दैट स्टेट। देखिए, रेसिडेंस इज अ टेम्पररी थिंग। रेसिडेंस के बेसिस पे पार्लियामेंट कुछ सीट्स रिजर्व कर सकता है, राइट? अगर ये कल को डिक्लेयर करना हो कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में ये ग्रुप सी की जो पोस्ट है ये सिर्फ उसके लिए रिजर्व होंगी जो उस स्टेट को बिलोंग करते हैं, सो पार्लियामेंट कैन डू सो बाय पासिंग अ लॉ। बट प्लेस ऑफ बर्थ के लिए ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं मिला है। सो पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ एंड से दैट दिस एम्प्लॉयमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टेट विल ओनली बी रिजर्व्ड फॉर द पीपल बॉर्न इन दैट स्टेट। तो ये प्लेस ऑफ बर्थ में और रेसिडेंस में यहां पे डिफरेंस किया गया, राइट? सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि ये वायलेशन हो जाएगा, बट अगर रेसिडेंस के लिए ये किया जाता इट वुड नॉट बी अ वायलेशन। ठीक, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट। अब इस बात पे आ जाते हैं कि बाकी कौन से ऐसे लॉज हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन, सॉरी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो पहला तो हमने देख ही लिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो पब्लिक यूटिलिटीज के एक्सेस से रिलेटेड है। देन इट इज आर्टिकल 17 मतलब राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इट्स ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। इट मींस अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है देन इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द अग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। देन कम्स आर्टिकल 23। ये क्या है? राइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है एंड फोर्ज और बॉन्डेड लेबर। तो अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी, प्राइवेट कंपनी भी कोई बॉन्डेड लेबर परफॉर्म कर रही है, राइट, सो दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये तो पहले से थे, बट जजमेंट ऑफ 2023 ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 भी अवेलेबल हैं अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। अब सोच के देखिए, इसका इंप्लीकेशन बहुत वाइड है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 में आप अभी तक ये मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट, इफ द स्टेट restricts someone's freedom of speech, then it's a violation of fundamental right. But what if, मान लीजिए आप फेसबुक पे हैं and you are saying something और फेसबुक आपके पोस्ट को डिलीट कर दे, and remember it was not anything extreme, it was not anything which was provoking people for violence, it was just a political view, let's say, but Facebook removes your post. So before this judgment there was no violation of fundamental right. Facebook had the right, but after this judgment, even if a private social media platform restricts the freedom of expression, it can be called a violation of fundamental right. Similarly, सोच के देखिए article 21, let's say right to clean environment, Supreme Court has said that is a part of article 21, right? अभी तक अगर आप कहीं पे pollution होता देखते थे, right, so you can say that state has violated article 21, so you can take state to the Supreme Court. बट जिस प्राइवेट कंपनी ने वो पॉल्यूशन कर रहे थे, कैन यू टेक देम टू द स्टेट, टू सुप्रीम कोर्ट एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? अर्लियर इट वाज नॉट फिजिबल, बट नाउ एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट जजमेंट, even that private party who is causing that pollution can be taken to the Supreme Court for violating the fundamental right. देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, किसी और लॉ के वायलेशन के लिए तो आप पहले भी उन्हें ले जा सकते थे, बट एज अ मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अर्लियर इट वाज नॉट फिजिबल, but now as per the Supreme Court judgment that is also feasible. ठीक, so it expands the scope of article 21, article 19 very significantly. चलिए, so that completes this question.
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड उसके वाइस एज अ चांसलर गवर्नर का जो रोल है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजन, अ फॉर्मेट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूपीएससी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट कहता है दैट व्हाइल एक्टिंग एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 कहता है गवर्नर्स रोल एज ex officio chancellor of state university is not envisaged under the constitution of India। ये भी बात सही है। स्टेटमेंट 3 कहता है 42nd constitutional amendment act made the advice of council of ministers binding on the president of India but not on the governor। ये भी सही है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, जो ये 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजन का फॉर्मेट यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, ऑप्शंस को देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 को बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है, ये सही है। अब देखिए, कहीं भी स्टेटमेंट 1 की एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑल दिस इज कि स्टेटमेंट 2 और 3 में कौन करेक्ट है और उनमें से कौन सा स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। सो बाय डिफॉल्ट दे आर अज्यूमिंग कि स्टेटमेंट 1 तो सही है। ठीक, अच्छा, तो इसका हमारा जो आंसर है, बेसिकली देखिए स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है, बट ओनली स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। हाउ, विल टॉक अबाउट इट। बट आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए, अब सबसे पहले ही चीज कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। सी, देयर आर 3 इश्यूज for which the governors of the states are under the tussle with with the council of minister with the state government। पहला तो ये है गवर्नर का रोल एज अ चांसलर। बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, राइट। इनफैक्ट अभी यूजीसी की एक गाइडलाइन आई है चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सो आफ्टर दैट ऑल्सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव shown their discontent with that guideline। अभी वो ड्राफ्ट स्टेज पे है, तो आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बट द इशू बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड इशू जिसपे टसल चल रहा है गवर्नर का, दैट इज गवर्नर को जो पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को रिजर्व करने के लिए फॉर द प्रेसिडेंट। इसमें भी बहुत सारी निटिग्रिटी इन्वॉल्व है, एंड आई थिंक हमने अनुभव 2 या 1 में ये इशू कवर किया था, राइट। देन द थर्ड इशू फॉर विच गवर्नर इज इन टसल विद द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज जो गवर्नर का स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस होता है, स्पेशल एड्रेस जैसे हम कहते हैं, राइट, हर ईयर के पहले सेशन में और इलेक्शन के बाद के पहले सेशन में, राइट। दैट एड्रेस इज ड्राफ्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट ही होता है। देयर हैव बीन सर्टेन केसेस, स्पेशली तमिलनाडु के जो गवर्नर है, दे हैव रिफ्यूज्ड टू एड्रेस द सेशन बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट रिटन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत बार किया है उन्होंने, इस बार भी हुआ है, राइट। सो ये इशू भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। प्लीज मेक श्योर कि आप ये तीनों ही इश्यूज से जितने भी रिलेटेड प्रोविजन है यू आर रीडिंग। अभी हम ये वाइस चांसलर वाला डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, वाइस, आपको ये पता होगा दैट गवर्नर्स इन मेनी स्टेट्स हैव द रोल ऑफ चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। जो स्टेट एक्ट से बनाई गई यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर की तरह होते हैं। एक्चुअली इट्स अ ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी। जब ब्रिटिशर्स ने ये कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज स्टैब्लिश की थी, सो उनकी जो भी यूनिवर्सिटीज होती थी, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि गवर्नर को अपॉइंट कर देते थे एज चांसलर, राइट। यही ट्रेडिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू रहा। सो व्हाट हैपेंड इज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बात नहीं की गई है, बिकॉज इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी, सो देयर इज अ स्टेट एक्ट। नाउ इन दैट स्टेट एक्ट they write that governor will be ex officio chancellor of the state university, and as part of that duty he will perform certain functions। जैसे फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के भी ड्यूटीज हैं काफी सारे स्टेट्स में। छोटे मोटे रूल्स रेगुलेशंस भी यूनिवर्सिटीज के they have the power to pass, right। Now what happens is, because this duty is not given under the constitution, आप ये सोचिए कि जो गवर्नर को दे हैव टू अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट कम्स ओनली फॉर द ड्यूटीज विच आर गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट इन मल्टीपल जजमेंट्स हैज सेड इज कि गवर्नर के पास 2 तरीके की पावर है, वन विच इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टैट्यूट्स जो स्टेट ने पास किए हैं, राइट। सो फॉर द powers which are given under the constitution, they have to act on the advice of council of minister, unless and until constitution explicitly states कि governor can act on his discretion, right। But for the powers which are coming from the state statutes, state laws, it's statutory
duty of the governor. It's not a constitutional duty. So they are not bound by the Council of Ministers advice. Right? So अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली इससे पता चल रहा है ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ही नहीं है टू एक्ट एज अ चांसलर. राइट? इट्स अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स एक्ट. ठीक. अच्छा, अब स्टेटमेंट 3 जो है उसमें क्या इशू है और वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा. सो ऑल ऑफ यू नो कि अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे so article 74 said that there shall be a council of minister who will advise the president, right? But ये बात नहीं लिखी गई थी that whether this advice is binding or not. It was assumed as a tradition but it was not explicitly mentioned. But then came the 42nd Constitutional Amendment Act. At this time this article was amended and it said that this advice given by the council of ministers shall be binding upon the president of India. जब ये amendment किया गया the same thing was not introduced for state governor. तो they did not say कि गवर्नर पे एडवाइस बाइंडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. लॉजिक भी समझ आता है बिकॉज देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल टू गवर्नर. तो ये नहीं किया गया था. राइट? बट पॉइंट इज क्या ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को? नहीं. सी दिस ड्यूटी एज अ चांसलर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भले ये लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भले ये बात नहीं लिखी हो कि इट इज बाइंडिंग. राइट? हाउ डज इट मैटर? बिकॉज द इशू इन कंसर्न इज ऑफ अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंड किया गया? हाउ कैन दैट एक्सप्लेन व्हाई गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी? राइट? सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट. अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक नेक्स्ट जो आया था इन द सीरीज, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, that also made a change in article 74 जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. So it explicitly stated that president can send back the advice of the council of minister for reconsideration. But once the council of minister sends the advice back to the president, now this will be binding. Right? So एक बार आप reconsideration के लिए भेज सकते हो. This change was made by 44th Constitutional Amendment Act. चलिए, so this completes all the issues involved in this topic. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पॉश एक्ट के बारे में क्वेश्चन है कि पॉश एक्ट के अंदर किसको किसको प्रोटेक्शन अवेलेबल है. अगेन क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सो आप सबको ये पता होगा दैट सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है whether political parties are covered under the POSH Act or not. For example, if a women member of a particular political party faces sexual harassment at the party office, is he getting this protection under the POSH Act? ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में. हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पे, बट हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. So a transgender employee facing sexual harassment at their workplace, इनको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है. A women employee working in small office with less than 10 employee अवेलेबल है. 10 employee से कम हो, 10 employee से ज्यादा हो, both of them like in both cases they have the protection. Third is also right, women client or visitor who is sexually harassed at an office where she does not work in. तो women वो let's say there is a woman that woman goes to an office. She does not work there, but she faces sexual harassment at that office. So that as a visitor also, she will be getting this protection under the act. तो ये भी सही है. Third, a male domestic worker facing sexual harassment by his employer. गलत है. इसमें दो प्रॉब्लम है. मेल को इन जनरल भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है और डोमेस्टिक वर्कर को वैसे भी अवेलेबल नहीं है. इवन इफ दे आर वुमेन, दे आर एक्सक्लूडेड. हम बात करेंगे अभी. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली. चलिए, अब इस एक्ट में जो आपको पता होना चाहिए. देखिए, अब हम कोई मेंस के लिए तो एनालाइज कर नहीं रहे, सो विल नॉट गो ऑन दी सब्जेक्टिव पार्ट, एनालिटिकल पार्ट, इश्यूज विद दिस एक्ट. इन जनरल यू विल नोटिस कि एक्ट से बहुत डीप क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है. एंड एक्ट से जो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे वो भी एक्ट वही होगा विच इज इन न्यूज वेरी सिग्निफिकेंटली. राइट? सो आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स एक्ट के बारे में पता होने चाहिए. वो सारे पैरामीटर क्विकली रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या था? सो यू मे बी नोइंग कि 1992 में भवरी देवी का एक केस हुआ था. शी वाज अ सोशल वर्कर एंड शी वाज रेप्ड एट हर वर्क प्लेस. So a case was filed in the Supreme Court
एक ग्रुप ऑफ सोशल एनजीओस थे जिसमें वन वाज विशाखा. सो इस कोर्ट में इस केस में सुप्रीम कोर्ट केम अप विथ विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द women who faced the sexual harassment at workplace. इस विशाखा गाइडलाइन के बेसिस पे ये पॉश एक्ट पास किया गया था, राइट. तो ये इसका बैकग्राउंड है. रिमेंबर कि यूपीएससी ने 2 बार ऐसा किया है कि वो एक बहुत फेमस केस देके पूछ लेते हैं कि इसका implication क्या रहा था, राइट. सो रिमेंबर these both भवरी देवी केस, भवरी देवी, नेम ऑफ भवरी देवी एंड द विशाखा गाइडलाइन, these are very famous names. चलिए, अच्छा, अब बाय द वे सबसे पहला डायमेंशन इस एक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन अवेलेबल किसको है. सो इट्स ओनली अवेलेबल टू वुमेन एम्प्लॉय एंड एज वेल एज वुमेन विजिटर्स हु विल बी विजिटिंग अ वर्क प्लेस. ये प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर्स को अवेलेबल नहीं है, ये प्रोटेक्शन मेल को अवेलेबल नहीं है, राइट. सो इट्स ओनली अवेलेबल टू वुमेन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट टेकिंग प्लेस एट अ वर्क प्लेस. इट डजंट मैटर वेदर दिस वुमेन वर्क्स इन दैट ऑफिस और नॉट. अगर वो विजिटर की तरह भी if she is going, she has the protection. ठीक. अच्छा, सेकेंड थिंग विच यू शुड नो कि वर्क प्लेस का मतलब क्या है यहां पे. क्या ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंक्लूड कर रहा है? यस, दोनों ही वर्क प्लेस इसमें इंक्लूडेड है. ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों से डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक. आई विल क्लैरिफाई दिस पॉइंट. अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है. लेट्स से इफ अ वुमेन एम्प्लॉय ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफिस visits certain other office for official purpose, right. अभी वो she is not in her own office but she has visited another office for official purpose. और अगर उस कैंपस में भी there is any case of sexual harassment, even that will be covered under the workplace. So she will be getting a protection under the POSH Act, right, because she was on her official duty. अच्छा, अब बात आती है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. So it says, the act says that any office which has 10 or more number of employees, they have to form an internal complaint committee. So women can file a complaint in front of ICC. So the idea is this कि अगर आप पुलिस वाले, obviously there are chances कि are not very comfortable कि वो directly पुलिस के cases में involve हो. Secondly, there are chances of delays. Wanted an internal mechanism से एक faster resolution हो सके and especially it can support women who are not very comfortable to approach the police. तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एक बनानी होगी which will be headed by a woman, right. अब अगर आप ध्यान दें तो ये किसको बनाना है? 10 और मोर जिनके पास एम्प्लॉइज हैं. सो डज दैट मीन कि अ वुमन हु इज वर्किंग इन एन ऑफिस व्हिच हैज 10 और लेस एम्प्लॉइज, उनको नहीं बनाना है? नहीं बनाना है. बट डज दैट मीन दे आर नॉट प्रोटेक्टेड? नो. So what happens is, other than internal complaint committee, there is also a concept of local complaint committee. This is formed at the level of district. So the district officer has to appoint a local complaint committee in every district. If a woman who is employee of an office which does not have more than 10 employees, तो वहाँ internal complaint committee नहीं है. But if she faces a sexual harassment at her workplace, she can approach the local complaint committee. So she has the protection. The only thing is ICC is not there, right. Then comes as I said कि जो domestic workers हैं, they are not included in this act. तो अगर कोई भी domestic worker है, be it women or men, वहां पे included नहीं है इसका protection इस act का. फिर कुछ basic procedure से related बातें पता होनी चाहिए आपको. First of all, it's not necessary कि aggrieved women has to file the complaint. Anyone on her behalf can also file a complaint. Secondly, आपको 3 month के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, they have to file a complaint in front of ICC within 3 months. But if ICC feels that there is a genuine reason why she could not file it within 3 months, they can extend the time. Then यहाँ पे एक और provision है which is often debated, that there is a provision for punishment for false complaint. If a woman made a false complaint, then there is a provision for punishment. Again, there are like both sides of the debate. Those who criticize this thing, they say कि this can deter a woman, because अगर if it is like she is not able to prove, there are times where it's difficult to prove कि there was sexual harassment. In that case, it will be assumed that it was a false complaint, and she will have to face punishment. So it can deter the women from filing complaint. अच्छा, अब बारी आती है जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स था पॉलिटिकल पार्टीज का.
देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज अर्लियर सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज do not have the responsibility to form an ICC. The problem is this: let's say a woman works in a restaurant. That restaurant owner is the employer and this woman is employed. There is a clear-cut employer and employee relationship. A woman works in a IT sector in a company. That company owner, the owner, they are the employer and this woman is employed. So again there is a clear-cut employer-employer relationships. But in case of political party, there is no clear relationship who is the employer in this case. Why is this important? Because it is the duty of the employer to form ICC. But who is the employer in political parties case? That's a very peculiar challenge in this case. So that is why the Supreme Court earlier said that this is not applicable, and that is why most of the political parties do not have an internal complaint committee. But Supreme Court also suggested that this is a matter for which the applicant, they should go and approach the ECI, because political party का जितना भी regulation है that comes under the mandate of ECI. So if ECI says then we can consider, right? So current state is कि अभी ये debate में है matter. Supreme Court has said कि it is the mandate of the ECI to issue guidelines in this behalf. चलिए अब next सवाल पे आते हैं. Again a very important issue. I'll show you connection from both PYQ and the current affairs. तो आप सबको पता है जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस की कहानियां बहुत लंबी है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. इट हैपेंस एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस से डील करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, एक्टिंग जज का, एडिशनल जज का एंड रिटायर्ड जज को वापस बुलाने का, राइट? अब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. What happened recently is Supreme Court suggested that to overcome the pendency of cases in high courts should utilize this provision given in the constitution and they should call retired judge to deal with the pendency of the cases. Supreme Court ने जो word use किया it was ad hoc judges. Remember ad hoc judge word constitution में Supreme Court के लिए तो दिया है but high court के लिए दिया नहीं है. Constitution simply says retired judge can be called back to act as judge temporarily. तो पहला तो ये केस है, काफी सारे आर्टिकल्स, काफी कवरेज हुई थी. सेकेंड थिंग इज दिस, इफ यू विल नोटिस, ये क्वेश्चन देखिए 2021 का, इसका पहला स्टेटमेंट देखिए. सो पहला स्टेटमेंट इज अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. So ये similar provision exists for High Court and this is the provision which Supreme Court said that High Court should utilize, right? And this has been barely used till now. ठीक है? So इसका Supreme Court का जो part है that has already been asked by UPSC. इस बार High Court में Supreme Court ने खुद कहा है that High Court should utilize this provision, right? There are very high chances कि इसके बारे में पूछा जा सकता है. चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो पहला कहता है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ टेम्पररी एडिशनल जज इन हाई कोर्ट इन केस देयर आर अरियर्स ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट. सही है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्टिंग जज इन हाई कोर्ट इफ अ सिटिंग जज इज अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. ये भी सही है. नहीं, ये गलत है, सॉरी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन नॉट डू, it's done by the president. So second statement is incorrect. The third statement says Chief Justice of High Court can request a retired judge of any High Court to serve as a judge temporarily in the same High Court. ये सही है. तो 1 and 3 हो जाएगा आपका. By the way, अगर आप ये देखें, यहाँ एडिशनल जज की बात हो रही है, यहाँ पे एक्टिंग जज की बात हो रही है और यहाँ पे रिटायर्ड जज को बुलाने की बात हो रही है, राइट? रिटायर्ड जज के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने टर्म यूज किया था एड हॉक जज, बट रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में दिस टर्म इज नॉट गिवन फॉर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए है. चलिए अब ये तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है. तो प्राइमरली आपको ये पता होना चाहिए कौन अपॉइंट करता है इनको, एंड सेकेंडली ग्राउंड्स क्या है इनको अपॉइंट करने के. थर्ड छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेंगे, बट प्राइमरली ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो पहले अगर आप देखें तो पहला केस है आपका एडिशनल जज का. अच्छा, एडिशनल और एक्टिंग वर्ड को देखें. एक्टिंग शोज कि समवन वाज एब्सेंट एंड दिस जज इज एक्टिंग लाइक एन एक्टिंग जज टेम्पररली टिल द टाइम दैट जज इज एब्सेंट, राइट? सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्टिंग, कि कोई एब्सेंट है और उसकी जगह पे आप टेम्पररली वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हो. एडिशनल का क्या मतलब है? कोई एब्सेंट नहीं है, यू आर ब्रिंगिंग समवन एज एन एडिशनल जज, राइट? सो अगर आप ये टर्म को भी डिकोड करेंगे तो आपको ग्राउंड वहां से क्लियर होने लग जाएगा.
तो एडिशनल जज कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, राइट। ग्राउंड क्या होगा? सो दो ग्राउंड है, एक आपका पेंडेंसी ऑफ वर्क चल रहा है या बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक। सो टू डील विथ दीज सिचुएशंस, या तो पेंडेंसी अरियर्स है या वर्क बहुत इंक्रीज हो गया है सडनली बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, इन दोनों ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एडिशनल जज। यहां पे एक कंडीशन लिखी गई है कि ये 2 ईयर से ज्यादा सर्व नहीं कर सकते हैं। आई डो नॉट थिंक इतना निटी-ग्रिटी में बात होगी कितने ईयर के लिए कर, बट यू शुड नो कि दिस इज गिवन। देन कम्स आपका एक्टिंग जज। एक्टिंग जज को कौन अपॉइंट करेगा? अगेन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, ठीक। आपका स्टेटमेंट इसलिए गलत था क्योंकि वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा था। नाउ एक्टिंग जज को कब अपॉइंट करेंगे? एज आई सेड, the name itself says that a particular judge is unable to perform his duty because of any reason. So temporarily, to fill that gap, you are appointing someone, a duly qualified person, as an acting judge. और ये कब तक रहेगा? Till the time that regular judge comes, right? So that is also a very logical thing. Now comes the third category of retired judge. So इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली सेज दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ग्राउंड नहीं लिखा गया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सर्व एज जज ऑफ दैट हाई कोर्ट जहां से वो रिटायर्ड हुए थे, या टू एनी अदर हाई कोर्ट। और ये अपॉइंट कौन करेगा? सो बेसिकली दैट जज हु इज बीइंग कॉल्ड अपॉन, दैट जज विल बी रिक्वेस्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अगर लेट्स से अभी हाई कोर्ट में एक रिटायर्ड जज को बुलाना है, सो द चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट विल रिक्वेस्ट दैट पर्सन, दैट रिटायर्ड जज, दैट वी वांट यू बैक ऑन द इन द हाई कोर्ट। ऑल्सो रिमेंबर कि जिस जज को बुलाया जा रहा है उसका कंसेंट भी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज ऑल्सो ऑब्वियस कि जिसको बुला रहे हो उसका कंसेंट तो लोगे ही लोगे। तो यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर रहे, हु इज अपॉइंटिंग? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, बट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखिए इसका ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वेरियस गाइडलाइंस कि ये कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। बट अगेन ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसपे आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस रट लेनी है, राइट। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल यू नीड टू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया, ठीक है। और इसका कोई फिक्स वो भी नहीं होता कि इतने टेन्योर के लिए किया जाएगा, 2 to 3 ईयर्स के लिए जनरली किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीएजी की ड्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट केस यू नो कि सीएजी अगेन इट्स बैक इन द न्यूज, राइट। सीएजी के बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो तो आपको रट्टा लगाते ही है। यहां पे एक सीमिंगली इजी सवाल था ड्यूटीज का, बट आई नो दैट सम ऑफ यू गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज हम उतना कीनली ऑब्जर्व नहीं करते हैं ड्यूटीज वाले पार्ट को। ऑल वी आर बिजी इन की टेन्योर कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं, राइट। दीज काइंड ऑफ फैक्चुअल थिंग्स वी फोकस अ लॉट, बट समटाइम्स वी मिस द ड्यूटी पार्ट। बाय द वे, I think one of the statements that we have used in this thing that has been borrowed from a UPSC question which was asked long back in 1990s. So what statement that was very I think वो ये third statement है if I'm right. So again I know students who felt कि ये क्या है, counter intuitive है, and while framing we thought it's a very good thing that UPSC has already asked 30 years back. So we should bring it back. तो ये वहां से borrow किया गया था. एनीवेज अब आते हैं कि इस पे क्या है। तो बेसिकली इसका आंसर तो देखो आपका ऑल 3 है, राइट। ये एग्जामिनिंग एंड सर्टिफाइंग फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ यूनियन सही है, प्रिपेयरिंग फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट ये भी सही है, सब कुछ सही है। आंसर आपका 1, 2 एंड 3 है। डिटेल पे आते हैं इसकी। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। As controller, 2 words हैं। As controller, the duty is to prepare and compile accounts of the government. But ये controller वाली जो duty है, this was taken away from the CAG with respect to union government. तो union government के लिए CAG is simply auditor. ये audit करते हैं, ये compile और account को बनाते नहीं है, they do not prepare the accounts, right? But for the state government, this duty is still with the CAG. ठीक, तो ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलर वाला पार्ट, कंपाइलिंग एंड प्रिपेयरिंग द अकाउंट, दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट।
यूनियन गवर्नमेंट का कंपाइल और प्रिपेयर कौन करता है? दैट इज अ न्यू ऑफिस विच इज CGA एंड दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट? अच्छा, ऑडिटिंग किस किस की, तो किस अकाउंट्स की जाती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने अकाउंट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड, राइट, इन तीनों में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, बीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, all will be audited, all of them will be audited by the CAG. अच्छा, फिर इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट की कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए दे मेंटेन दीज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी द CAG हैज द ड्यूटी टू इवन ऑडिट दीज कॉमर्शियल दीज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक? फिर एक बात ध्यान रखिए, आपने जो टाइप्स ऑफ ऑडिट जो CAG पढ़ा होगा उसमें आप पढ़ते होंगे परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, राइट, देन यू आल्सो रीड अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट विच इज द बेस ऑफ CAG, सबसे प्रोमिनेंट ऑडिट जो करते हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट जब इन अकाउंट्स का किया जाता है तो फाइनेंशियल ऑडिट में CAG की एक ड्यूटी होती है कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको सर्टिफाई करना और उसको एग्जामिन करना। प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, राइट? ऑल दे आर डूइंग इज एज पार्ट ऑफ द ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में आप क्या करोगे? यू विल सर्टिफाई, यू विल एग्जामिन इट, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट, राइट? तो हो सकता है दैट यू माइट नॉट हैव सीन दीज एग्जैक्ट टर्म्स, एग्जामिनिंग एंड सर्टिफाइंग, बट थिंक व्हाट एग्जैक्टली इज ऑडिट, दिस इज व्हाट ऑडिट इज, राइट? तो इन अकाउंट्स का दे डू। अब ये फाइनेंस अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये आपके फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो फाइनेंस अकाउंट सिंपली मींस इट इज the account, it is the annual financial statement where both receipts and the expenditure of government of India or for that matter government, state government का, that is being maintained। तो ये तो बहुत सिमिलर है जो आप जानते हो। बट appropriation account क्या होता है? So in case of appropriation account, what government shows is that this is our actual expenditure and this is its comparison with the expenditure which was approved by the parliament in the appropriation act। तो जब पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएशन एक्ट प्रीवियस ईयर में पास किया था तो एक सर्टेन एक्सपेंडिचर अलाउ की थी, राइट? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या मेंशन होगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गवर्नमेंट ये मेंशन करेगी दैट दिस इज आवर एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इट्स कंपैरिजन विद व्हाट वाज गिवन इन द अप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक? तो ये इसका मतलब है पहले स्टेटमेंट का। हमने थर्ड की भी बात कर ली, सेकंड पे देख लेते हैं। एज आई सेड कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं, राइट, अब उन अकाउंट में दो पॉपुलर अकाउंट यही है, फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन अकाउंट का कंपाइलेशन और प्रिपरेशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए CAG विल डू, सेकंड विल नॉट बी वैलिड फॉर यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अलावा भी आप सबको पता है कि CAG कुछ और ऑडिट करता है, यानी PSUs के ऑडिट भी CAG करता है, राइट? फिर कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसके ऑडिट भी CAG करता है। PSU का मतलब होता है कि कंपनीज एक्ट से बनी कंपनी है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है बट इसका एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था, जैसे LIC मान लीजिए या दिल्ली मेट्रो मान लीजिए, राइट? तो उसका भी ऑडिट CAG करती है। कोई ऐसा ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली अंडर नहीं आता है बट इट इज सब्सटैंशियली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, इवन उनका ऑडिट भी CAG करती है, राइट? चलिए, अगेन अ सीमिंगली टफ क्वेश्चन है भी, एक्चुअली थोड़ा सा निटिग्रिटी में है। ऑप्शंस ऑल्दो रिलेटिवली थोड़े से इजी थे बट क्वेश्चन टफ है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का? दो कॉन्टेक्स्ट है। एक जो आपने सुना होगा अमृतपाल का जो केस चल रहा है, दैट ही इज इन जेल एंड दैट पर्सन हैज बीन इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्योंकि जेल में है सो दैट ही कैन नॉट अटेंड द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि अगर आप 60 डेज के लिए एब्सेंट रहते हैं तो आपकी मेंबरशिप वेकेट की जा सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल का काफी जिक्र हो रहा था। देन एक और इशू बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, दैट इज वन कैंडिडेट वन सीट, राइट? मतलब एक कोई कैंडिडेट है वो मल्टीपल सीट से ना इलेक्शन लड़े, वो अगर लोकसभा का है तो राज्यसभा का इलेक्शन ना लड़े, लोकसभा का है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ना लड़े, राइट? तो ये भी बात काफी ज्यादा की जाती है। तो इन दोनों इश्यूज को मिक्स करके ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। स्टेटमेंट देखते हैं इसके। पहला स्टेटमेंट कहता है अ राज्यसभा मेंबर मस्ट रिजाइन बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द लोकसभा। ऐसा कुछ नहीं है।
If a Lok Sabha member is elected to Rajya Sabha, their seat in the Lok Sabha, by the way, first statement is the easiest, right? They do not have to resign before that. ये बात अलग है कि अगर राज्यसभा के मेंबर हो और लोकसभा में इलेक्ट हो गए तब आपको राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी, राइट? बट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन देयर इज नो नेसेसिटी. Second statement says if a Lok Sabha member is elected to Rajya Sabha, their seat in Lok Sabha becomes vacant. सही है. Third, if a person is elected to both Lok Sabha and State Legislative Assembly, their Lok Sabha seat becomes vacant if they do not resign from State Legislative Assembly within 14 days. सही है. If a member of Parliament remains absent from House for 60 days without permission of the House, their seat automatically stands vacated. ये गलत है. Automatically नहीं होता है. क्या procedure है? We will talk about. Fifth, an MP in jail who is unable to attend Parliament can apply for leave and their seat will not be vacated if permission is granted by the House. सही है. 2, 3 and 5. B. In fact, जो आर्टिकल डिस्कस हो रहे हैं उसमें यही बात हो रही है कि इफ अमृतपाल अप्लाइज फॉर लीव और लीव मिल जाती है, एंड रिमेंबर लीव मैक्सिमम केसेस में अभी तक परमिशन मिली है, सो इफ ही गेट्स लीव देन ही विल नॉट हैव टू वेकेट हिज सीट. एनीवेज, तो आपके ये कुछ केसेस हैं वेकेटिंग ऑफ सीट के. अब यहां पे थोड़ी सी बात ये ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी डिटेल नहीं लिखी गई है. What Constitution says is, Constitution simply says कि you cannot be member of both houses of the Parliament. अगर हो तो क्या होगा? That parliamentary law will determine. Secondly, the Constitution also says that you cannot be a member of both Parliament as well as state legislature. If you are, then again what will happen? That parliamentary law will determine. तो ये RPA में लिखे गए हैं ये डिटेल. Constitution में सिर्फ ये बेसिक बात लिखी गई, राइट? अब एक एक करके सारे केसेस देख लेते हैं इसमें होता क्या है. तो पहला केस है कि आप अभी किसी हाउस के मेंबर नहीं है, राइट? बट यू गेट इलेक्टेड टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट? अभी आप किसी हाउस के मेंबर नहीं है एंड यू गेट इलेक्टेड टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. तो यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर विद इन 10 days टेल कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, और अदरवाइज आपकी राज्यसभा की सीट वेकेट हो जाएगी और लोकसभा का आपको मेंबर माना जाएगा. सो इट मींस लोकसभा और राज्यसभा में हायर प्रायोरिटी किसको दी गई है? लोकसभा को, राइट? वाई? ऑब्वियस भी है कि क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्शन है तो इट्स पीपल्स मैंडेट डायरेक्टली, राइट? बट इसका एक दूसरा वर्जन होता है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, एंड दैट इज कि अगर आप एक सिटिंग मेंबर हैं, लेट्स से आप लोकसभा के सिटिंग मेंबर हैं एंड देन यू गेट इलेक्टेड टू राज्यसभा, तब आपका प्रीवियस हाउस से सीट विकेट हो जाएगी और आपने जो नेक्स्ट हाउस के लिए इलेक्शन लड़ा है यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट हाउस. क्यों? लॉजिक है भाई, अगर मैं किसी हाउस का मेंबर होते हुए दूसरे हाउस के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, देन ऑलरेडी माय चॉइस इज क्लियर दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट सेकंड हाउस, राइट? तो मेरे प्रीवियस हाउस की ऑलरेडी सीट विकेट हो जाएगी. देन कम्स थर्ड केस कि आप 2 सीट से अगर इलेक्ट हो जाए, मतलब लेट्स से बहुत कॉमन है लोकसभा में 2 सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करना. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यू हैव टू टेल कि आप कौन सी सीट ऑप्ट करते हो. अगर नहीं बताओगे विद इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, देन बोथ सीट्स विल बी वेकेटेड, राइट? अच्छा, फिर केस है आपका कि अगर आप पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब अभी आप मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के, ना पार्लियामेंट के ना स्टेट लेजिस्लेचर के, बट यू गेट इलेक्टेड टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट? तो क्या होगा? इन दिस केस आपको 14 डेज के अंदर यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन आपकी पार्लियामेंट की सीट वेकेट हो जाएगी एंड यू विल बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक, इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पार्लियामेंट से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, राइट? तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लोकसभा राज्यसभा में, हु विल गेट द प्रायोरिटी? लोकसभा. राज्यसभा वेकेट हो जाएगा. लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रायोरिटी मिलेगी. अब आते हैं लास्ट केस, जो है अमृतपाल वाला केस, कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर हैं एंड इफ यू आर एब्सेंट फॉर 60 डेज, और ये 60 डेज जो काउंट किए जाएंगे इसमें वो डेज काउंट नहीं करेंगे वेयर द हाउस इज प्रोरोग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 डेज, ताकि हम एक्चुअल सिटिंग देखें कि एक्चुअल सिटिंग में कितने मिस हुए हैं, राइट? तो अगर आप 60 डेज से ज्यादा के लिए एब्सेंट हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ हाउस, देन हाउस में डिक्लेयर योर सीट वेकेटेड. यहां पे 2 बातें हैं. एक, अगर आप हाउस से परमिशन ले लें तब आपकी सीट वेकेट नहीं की जाएगी. सेकंड, मान लीजिए आप हाउस से परमिशन नहीं लिए और 60 डेज क्रॉस कर चुके हैं, इवन इन दैट केस ऑटोमेटिकली आपकी सीट वेकेट नहीं होगी, देन हाउस मे डिक्लेयर द सीट वेकेटेड. तो हाउस हैज टू वोट, राइट? तो अब मान लीजिए प्रैक्टिकल केस अमृतपाल का ही ले लेते हैं.
सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये परमिशन ले ले हाउस की, तो हाउस की परमिशन कैसे ली जाती है? तो बेसिकली एक कमिटी होती है, कमिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ हाउस। इस कमिटी से परमिशन ली जाती है, कमिटी रिकमेंड करती है और फिर ये रिकमेंडेशन जाती है हाउस के पास, एंड इफ हाउस एग्रीज विद दैट परमिशन देन दिस पर्सन हैज गॉट द परमिशन टू नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। तो अब ये वेकेट नहीं की जाएगी इनकी सीट, नो मैटर फॉर हाउ मेनी डेज दे आर एब्सेंट। द सेकंड केस इज दिस कि परमिशन नहीं मिली मान लो, राइट? तब क्या होगा? तब हाउस विल वोट कि अब इसे परमिशन नहीं मिली है, इज दिस सीट वेकेटेड और नॉट? सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि हाउस वोट ना करे एंड दैट सीट रिमेन्स विद दैट पर्सन, ठीक? सो दैट इज वाई वो ऑटोमेटिकली वेकेशन वाला जो ऑप्शन गलत था। अच्छा, बाय द वे ये जेल वाला जो कंडीशन है, इट माइट सीम काउंटर इंट्यूटिव बट ऐसा है। नो मैटर आप किसी भी ग्राउंड की वजह से एब्सेंट है, चाहे वो आप जेल्ड ही क्यों ना हो, राइट? इफ यू फाइल फॉर परमिशन टू दैट कमिटी और आपको परमिशन मिल जाती है, देन यू विल नॉट बी एब्सेंट। इनफैक्ट इमरजेंसी के दौरान पे इट वाज वेरी कॉमन, राइट? इमरजेंसी के दौरान देयर वर लॉट ऑफ अपोजिशन मेंबर्स हु वर जेल्ड एंड दे वर नॉट एबल टू अटेंड द पार्लियामेंट। मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम गॉट द परमिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्राम न्यायालय का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बेसिक ही है, कुछ स्टेटमेंट तो इजी टू गेस भी है। देखिए न्यूज क्या है ग्राम न्यायालय की? अगेन इट्स अ थीम विच इज टेकन फ्रॉम बोथ पीवाईक्यू एंड आपका करंट अफेयर्स। तो जो अभी करंट अफेयर्स का न्यूज है दैट इज दिस कि सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चनड द फिजिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। आर्ग्यूमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दिस कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना इतना फाइनेंसेस नहीं है कि वो हाई कोर्ट को मेंटेन कर सके, सो हाउ कैन दे मेंटेन द ग्राम न्यायालय? सो दे हैव क्वेश्चन, और उसके बाद काफी सारे आर्टिकल आ रहे थे। दिस वाज नॉट द ओनली इशू, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय से रिलेटेड काफी सारी रिपोर्ट मांगी थी फ्रॉम हाई कोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? पीवाईक्यू से इसका रिलेशन ये है, देखिए जो भी स्पीडी जस्टिस के लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं, राइट, यूपीएससी हैज आस्क्ड देम मोर देन एटलीस्ट 2 to 3 times in last 15 years. तो ग्राम न्यायालय इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फास्टर जस्टिस, स्पीडी जस्टिस दैट टू ग्रास रूट वहां पे जाके एट लेवल ऑफ विलेजेस, राइट? स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एट इंटरमीडिएट पंचायत लेवल, ठीक है। Then comes state governments are responsible for establishing ग्राम न्यायालय in consultation with respective high court, सही है। Dispute in the ग्राम न्यायालय are to be settled as far as possible by conciliation between the party। ये स्टेटमेंट बहुत easy to guess है एक्चुअली, ये भी सही है, all three। अब ग्राम न्यायालय के बारे में जो भी आपको पता होना चाहिए क्विकली सब रिकैप कर लेते हैं, ठीक? बहुत ज्यादा चीजें हैं लेकिन सबसे पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में पास किया गया था जिसके अंडर इसको बनाया जाता है। देन सेकंड कम्स इसका जो सीट ऑफ ग्राम न्यायालय है कि कहां पे एस्टैब्लिश करना है। तो इंटरमीडिएट पंचायत का जो लेवल है, पंचायत के 3 टियर हो गए, जो इंटरमीडिएट पंचायत का लेवल है उसमें हमें ग्राम पंचायत को एस्टैब्लिश करना है। एस्टैब्लिश कौन करेगा? विल एस्टैब्लिश इट। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा सेंटर की ड्यूटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, एंड दैट टू इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बट एक और क्लैरिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट मैंडेटेड, it is not mandatory for them, right? And that is also one of the argument which was given by Supreme Court कि ये mandatory तो है नहीं और आपने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हाई कोर्ट के लिए पूरे हो नहीं रहे, तो हाउ विल दे एस्टैब्लिश द ग्राम न्यायालय? ठीक। अच्छा, फिर आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? क्या ये सिविल केसेस डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस डील करते हैं? बोथ ऑफ देम, राइट? तो ये सारे टाइप के केसेस डील कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिर एक बात ये आती है, अब आप देखो अगर आप कोई भी चीज फास्टर जस्टिस के लिए बनाओगे, स्पीडी जस्टिस के लिए बनाओगे, व्हाई डिड आई से कि थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियस है कि कोई भी चीज अगर आपको पता है स्पीडी जस्टिस के लिए बना रहे हो, सो देयर आर सर्टेन कॉमन प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू कि इंडियन एविडेंस एक्ट के जो रूल्स हैं दे विल नॉट बी एप्लीकेबल, सो दैट प्रोसेस इज फास्टर। अब बाय द वे आपका जो न्यू एक्ट आ गया दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट हैज रिप्लेस्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकेंड थिंग दैट यू विल डू इज कि आप जो कंसीलिएशन और मीडिएशन के प्रोविजंस होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। व्हाट इज मेंट कंसीलिएशन? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। सो आप चाहोगे कि पहले कंसीलिएशन के थ्रू अगर सेटल हो जाए दैट इज बेटर, राइट? दैट इज अगेन अ मैकेनिज्म फॉर अ फास्टर जस्टिस।
That is why that statement was very obvious if you know that the purpose is speedy justice. ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ग्राम न्यायालय के बारे में पता होनी चाहिए. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन तो पढ़ा है आप लोग का सबका, बहुत कॉमनली आप लोग पढ़ते हो. फॉर्मेट इट माइट बी की इट्स दैट मेड द क्वेश्चन स्लाइटली मॉडरेट. चलो, तो पहला स्टेटमेंट कहता है, ये आपका जो क्वेश्चन है, थीम है आपका मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जिसे आप कहते हो. ठीक, टाइप 1 बहुत स्टैंडर्ड नेम नहीं है, दैट इज व्हाई इट वाज रिटन आर्टिकल 117 क्लॉज 1. तो स्टेटमेंट 1 कहता है, प्रेसिडेंट कैन नॉट समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर अ मनी बिल. बिल्कुल सही बात है, बट अ जॉइंट सिटिंग कैन बी कन्वीन्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1. बिल्कुल सही है. एनीवेज, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि 3 असर्शन रीजन में पहला स्टेटमेंट सही ही होगा, राइट? कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया अभी तक यूपीएससी ने. स्टेटमेंट 2 कहता है, राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल बट इट कैन एक्सरसाइज बोथ दीज पावर्स इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल. सही बात है. थर्ड, अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट वेयर एज नो सच प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल बिल. गलत है, इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए. ठीक, बाय द वे स्टेटमेंट 2 इज द रीजन, इट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. कैसे एक्सप्लेन करता है, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी डिटेल इसके बाद देखेंगे. देखो, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस, राइट? अगर राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है रिजेक्ट या अमेंड करने की, जस्ट एज इन द केस ऑफ मनी बिल, तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसलिए मनी बिल में आपका ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है. बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा हैज ऑल द पावर्स. इट कैन अमेंड इट, इट कैन रिजेक्ट इट, राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, और पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है, दैट मींस कि ज्वाइंट सिटिंग समन की जा सकती है, राइट? देयर इज अनदर टाइप ऑफ बिल जहां ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. उसका क्या लॉजिक है, राइट? उसका ये लॉजिक नहीं है, राइट? वहां पे राज्यसभा के पास सारी पावर है. बट द थिंग इज, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स कि इट हैज टू बी पास्ड सेपरेटली बाय बोथ हाउसेस. सेपरेटली बाय बोथ हाउसेस का मतलब ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन दैट इज ऑलरेडी रिजेक्टेड, राइट? तो ज्वाइंट सिटिंग दोनों में नहीं होती है, बट लॉजिक क्यों नहीं होती है दैट इज डिफरेंट. चलिए बाकी डिटेल के लिए अब आते हैं. तो हमारे पास 3 टाइप के बिल हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 1 जिसको आप टाइप 1 कहते हैं, और फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3 जिसको आप टाइप 2 फाइनेंशियल बिल कहते हो, राइट? आपको प्राइमरली किस चीजों पे पता होना चाहिए? एक तो भाई इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है. थर्ड, इसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन है क्या. थर्ड, राज्यसभा की पावर्स क्या है इस बिल से रिलेटेड. तो सबसे पहले मनी बिल एक्सट्रीम केस है. सबसे पहला, आर्टिकल 110 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ओनली दो सब्जेक्ट्स मैटर शुड बी प्रेजेंट इन दिस बिल टू बी कॉल्ड एज मनी बिल. ठीक. सेकेंडली, क्या इंट्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन है? ऑब्वियसली है, आप सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. सेकेंडली, द प्रायर consent of the president is required, prior recommendation of the president is required, right, to be introduced in the Lok Sabha. राज्यसभा की क्या पावर है? कुछ नहीं. 14 डेज के लिए डिले कर पाना. ना राज्यसभा अमेंड कर सकती है, ना राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है, राइट? ओनली थिंग इट कैन डू इज टू डिले इट फॉर 14 डेज. देन कम्स द सेकेंड सीवियर केस जो इससे 1 डिग्री कम है, दैट इज फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 1110 क्लॉज 1. इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो आर्टिकल 1110 में जो दिया है वो तो है, बट अदर देन दैट कुछ और जनरल मैटर भी है, राइट? देन वी विल कॉल इट अ फाइनेंशियल बिल टाइप 1. इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन है इंट्रोड्यूस करने के लिए? सेम प्रोविजन, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे. सेकेंडली, प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की इंट्रोड्यूस करने के लिए. ठीक. बट डिफरेंस कम्स इन द पावर ऑफ राज्यसभा. तो राज्यसभा के पास सारी वो पावर है विच इट हैज फॉर एन ऑर्डिनरी बिल. तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, राइट? नाउ कम्स द लीस्ट सीवियर कैटेगरी जो आपका फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है. इसमें सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 1110 का है ही नहीं, बट दीज थिंग्स इन्वॉल्व सर्टेन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो हम इसे टाइप 2 बिल बोल रहे हैं. अब इसमें क्या कोई स्पेशल प्रोविजन है इंट्रोडक्शन के लिए? इंट्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है. यू कैन इंट्रोड्यूस इट इन बोथ हाउसेस, यू कैन इंट्रोड्यूस इट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. राज्यसभा की क्या पावर में कोई डिफरेंस है? नहीं. राज्यसभा हैज द सेम पावर लाइक एन ऑर्डिनरी बिल. तो फिर डिफरेंस क्या है? इसको ऑर्डिनरी क्यों नहीं बोल रहे? द ओनली डिफरेंस इज कि प्रेसिडेंट की परमिशन इंट्रोड्यूस करने के लिए तो नहीं चाहिए, बट वंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड द
parliament wants to start the consideration of that bill. For that it requires prior permission of the president. तो introduce कर सकते हो, but for consideration you need prior permission of the president. That is the only special thing with respect to this financial bill. अब आ जाते हैं next question, easy one. Chief election commissioner or other election commissioner, they enjoy equal powers and status in which of the following matter. देखिए, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं शायद उनके लिए इजी नहीं हो, सो पार्डन मी, इट्स नॉट टू टेल कि अगर आपसे नहीं हुआ तो यू शुड बी डिमोटिवेटेड, बट नॉट दैट टफ. ठीक है, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये बात पता चल जाएगी. तो इसमें कह रहा है कि इक्वल पावर्स किस में है, इसका पहले आंसर देख लेते हैं सब. डिसीजन मेकिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही है. सैलरी एंड अलायंसेस सही है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस ये गलत है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस. तो आपका 1 and 2 ओनली हो जाएगा, इसमें पैरिटी है. एक एक करके बात कर लेते हैं. तो डिसीजन मेकिंग में ऑल्दो वन इज कॉल्ड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स आर कॉल्ड एज इलेक्शन कमिश्नर, बट दैट डज नॉट मीन कि डिसीजन मेकिंग में कोई डिफरेंस है. ठीक, डिसीजन मेकिंग में दे हैव द इक्वल पावर्स. अगर दे हैव टू फर्स्टली दे हैव टू टेक डिसीजन बाय कंसेंसस, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा. ठीक, कोई इसमें ऐसी बात नहीं होती है कि इनके पास कोई वीटो पावर होती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है. बाय द वे वीटो पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज देयर आर 3 मेंबर्स, तो टाई होने नहीं वाला है. ठीक, सेकंड कम्स सैलरी एंड अलायंसेस. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सैलरी एंड अलायंसेस डायरेक्टली नहीं दी गई है, पार्लियामेंट्री एक्ट में है, राइट, एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम सैलरी. तो जो अभी बिल पास किया गया था सीईसी एंड ईसी 2023 बिल, it says कि both of them, like chief election commissioner and election commissioner, they will have the salary which is equal to the Supreme Court judge. बराबर है. एंड सैलरी किसी की भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. बराबर है लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, और चार्ज भी नहीं है. वन थिंग यू शुड हैव दिस क्लैरिटी. रिमेंबर सम स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन कि इनकी सैलरी जो है एक्ट में लिखी गई है लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी. नहीं, What happened is जब ये बिल पास हो रहा था, इनिशियली इट वाज मेंशन कि देयर सैलरी इज इक्वल टू कैबिनेट सेक्रेटरी, बट सुप्रीम बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवरेज आ गई. लेकिन जब एक्ट एक्चुअली पास हुआ, इसका बहुत अपोजिशन हुआ था इस प्रोविजन का, सो इट वाज ब्रॉट बैक कि इनकी जो सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होगी. तो फाइनली जो एक्ट पास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट है. बट व्हाट हैपेंड इज कि न्यूज़पेपर की कवरेज बिल की ज्यादा हुई थी, एक्ट की कम हुई. राइट, सो दैट इज व्हाई सम स्टूडेंट्स फील कि न्यूज़पेपर में तो हमने देखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जज नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी है. गलत है वो बात. थर्ड थिंग इज टेन्योर सिक्योरिटी और रिमूवल प्रोसेस. देखो, रिमूवल प्रोसेस में डिफरेंस है. एक्चुअली देयर आर ओनली 2 केसेस जहां पे इन दोनों के बीच पैरिटी नहीं है. वन ऑफ दैट इज रिमूवल प्रोसेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि सीईसी कैन ओनली बी रिमूव्ड इन द मैनर विच इज प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. तो जो सुप्रीम कोर्ट जज को आप जैसे रिमूव करते हो, सेम वे में ही आप रिमूव कर सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये सिक्योरिटी नहीं है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर on the advice can only be removed by the president of India on the advice of chief election commissioner. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल तो सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे होगा, बट दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल जो होगा प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक, अच्छा, ये एक पहला केस है जहां इनके बीच पैरिटी नहीं है. सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इज दिस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स will be determined by the president based on a parliamentary act. तो कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन ऑफ सर्विस नहीं देता है. इट सेज कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री एक्ट. बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट. मतलब पहले टेन्योर 6 साल है, अपॉइंटमेंट के बाद रिड्यूस कर दो, राइट, या फॉर दैट मैटर पहले सैलरी इतनी है, बाद में रिड्यूस कर दो. दिस यू कैन नॉट डू. बट ये सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए देता है? सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, कि उनकी अपॉइंटमेंट के बाद आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो. राइट, इलेक्शन कमिश्नर को ये सिक्योरिटी मिलती है दैट योर कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू योर डिसएडवांटेज, बट दिस इज गिवन अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट. जो सीईसी एंड ईसी एक्ट पास किया गया उसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है. राइट, सो दीज आर द ओनली 2 केसेस वेयर द सीईसी एंड हैव इक्वल स्टेटस.
चलिए अब आ जाते हैं रिजर्वेशन के बारे में। एक क्वेश्चन था, अगेन दिखता आसान है बट आई नो मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस रॉन्ग। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइप के रिजर्वेशन की बात करता है। सम ऑफ देम आर मैंडेटरी एंड सम ऑफ देम आर सिंपली इनेबलिंग प्रोविजन, मींस इफ स्टेट वांट्स इट कैन प्रोवाइड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है स्टेट मे प्रोवाइड, बट कुछ ऐसे हैं दैट स्टेट मस्ट प्रोवाइड, राइट? तो उसके बीच का डिफरेंस पूछा गया। तो इसमें जो आपका पहला और दूसरा है दैट इज एक्चुअली इनेबलिंग प्रोविजन, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट बाकी तीनों जो है वो सारे मैंडेटरी हैं। एक काम करते हैं, तो बाय द वे आपका आंसर क्या हो गया? 3 4 5। सो आई हैव टैब्युलेटेड एवरीथिंग फॉर यू, जितने भी टाइप के रिजर्वेशन है। सो वी विल डिवाइड द रिजर्वेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 3 कैटेगरीज। पहला, इट इज मैंडेटेड फॉर द स्टेट, स्टेट मस्ट डू इट। सेकेंड, स्टेट मे कंसिडर, मतलब इनेबलिंग है, नॉट मैंडेटेड बट स्टेट मे डू। थर्ड इज which has not been mentioned at all under the constitution of India। पहले बात करते हैं मैंडेटरी केसेस की। तो मैंडेटरी जो भी है एक्चुअली वो लेजिस्लेटिव बॉडी से रिलेटेड है, राइट? द फर्स्ट थिंग विच इज मैंडेटरी इज दिस कि जो एसटी, एससी और वुमेन का रिजर्वेशन है इन केस ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों एसटी, एससी, वुमेन, राइट, का कहां पे रिजर्वेशन? लेजिस्लेटिव बॉडी में। कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी में? डायरेक्ट वाली, मतलब लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये मैंडेटरी है, ठीक? देन कम्स एट द लेवल ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत के केस में एसटी, एससी का रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन, तीनों लेवल ऑफ पंचायत में मैंडेटरी है। स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गिव, मेंबर के लेवल पे भी और चेयरपर्सन के लेवल पे भी। हर टीयर ऑफ द पंचायत में 2 टाइप की पोजीशन है, एक तो मेंबर हो गया, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, एंड सेकेंड इज दी चेयरपर्सन ऑफ द ग्राम पंचायत। तो किसी भी लेवल की पंचायत हो, चाहे मेंबर हो चाहे चेयरपर्सन हो, इट इज मैंडेटरी। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज कि चेयरपर्सन के लिए नहीं है, बट इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक? अच्छा, बट व्हेन इट कम्स टू म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी के लिए मेंबर के लेवल पे इनको रिजर्वेशन देना, एसटी, एससी, वुमेन को, दैट इज कंपल्सरी, बट चेयरपर्सन के लेवल पे दैट स्टेट मे गिव, ठीक है? तो म्युनिसिपैलिटी में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, विच इज स्टेट मे प्रोवाइड। तो इसमें आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रिजर्वेशन है, बोथ ऑफ देम आर सिंपली इनेबलिंग प्रोविजन। इफ ए स्टेट वांट्स इट कैन गिव, राइट, बट देयर इज नो कंपल्शन। सिमिलरली पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों में ही ओबीसी के लिए अगर रिजर्वेशन है, चाहे वो मेंबर का हो या फिर आपका चेयरपर्सन का हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स इट कैन प्रोवाइड। अभी म्युनिसिपैलिटी वाली बात तो हमने कर ही ली कि म्युनिसिपैलिटी में एट द लेवल ऑफ मेंबर इट इज कंपल्सरी, बट एट द लेवल ऑफ चेयरपर्सन इट इज इनेबलिंग। स्टेट गवर्नमेंट इफ इट वांट्स इट कैन डू, ठीक? अब ये ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट कई बार आप मिस कर सकते हैं एग्जाम के प्रेशर में। रिजर्वेशन फॉर बीट एसटी, एससी और वुमेन इन राज्यसभा और इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इट इज नॉट प्रोवाइडेड, राइट? ये सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी में है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन का केस है। देयर आर सर्टेन केसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर पार्लियामेंट गेट द पावर टू मेक अ लॉ फॉर अ स्टेटलेस सब्जेक्ट, राइट? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो एक कंडीशन ये दी है कि भाई 2 और 2 से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर है, दे हैव रिक्वेस्टेड द पार्लियामेंट टू फ्रेम अ लॉ ऑन अ स्टेटलेस सब्जेक्ट। तो क्या क्या होगा इसमें? पहला कहता है सच अ लॉ बाय डिफॉल्ट अप्लाइज ओनली टू द स्टेट दैट हैव पास्ड द रेजोल्यूशन। सही बात है। सेकंड, पार्लियामेंट में एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ सच लॉ टू अदर स्टेट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। गलत है। पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन पास करने से एक्सटेंड नहीं होगा। अगर कोई दूसरा स्टेट चाहे दे कैन पास अ रेजोल्यूशन, तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड कहता है द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर मे अमेंड सच अ लॉ एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। यह भी गलत है। तो आपका बेसिकली 1 ओनली हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये केस समझ लेते हैं, फिर इससे सिमिलर जो केसेस हैं उसका एक कंपैरेटिव चार्ट देख लेंगे। सबसे पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट? तो आपने कभी एक एक्ट सुना होगा, वाटर एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट अमेंडमेंट 2000, पार्डन मी, ये 23 या 24 दोनों में से कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट अभी का एक्ट है। तो ये जो एक्ट पास किया गया था आपने पढ़ा होगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर राजस्थान एंड हिमाचल। Why? Because these were the 2 states which requested the parliament to pass this amendment, right? तो इसी
प्रोविजन का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज किया गया था, राइट? ये आर्टिकल 252 में दिया है। तो व्हाट इट सेज इज if two or more state legislatures request the parliament, how will they request? By simply passing a resolution, and they request a parliament that this is a particular subject in our state list subject, we feel the need that you should make a law for us. ठीक, तो पार्लियामेंट if it wants it can make a law. अभी जब लॉ बनेगा, so this law will be implemented only in those states which requested. By the way, स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो रिजोल्यूशन पास करेंगी सिंपल मेजोरिटी से करेंगी, पार्लियामेंट भी जो लॉ बनाएगा दैट विल बी थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ठीक, अच्छा, लॉ बन गया, लॉ सिर्फ उस स्टेट पे एप्लीकेबल होगा जिसने ये रिक्वेस्ट की है। बट अगर कोई दूसरा स्टेट भी चाहे, दे कैन पास अ रिजोल्यूशन आफ्टर द एक्ट एंड दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस लेजिस्लेशन, वो ये कर सकते हैं। स्टेट हैज टू पास रिजोल्यूशन। देन कम्स अनदर थिंग कि भाई ये जो लॉ बनाया गया है, ये लॉ कब तक वैलिड होगा? इट विल बी वैलिड फॉर एवर, अगर इसे जब तक रिपील ना किया जाए। रिपील करेगा कौन? क्या स्टेट लेजिस्लेचर रिपील कर सकती है इस लॉ को? नहीं। द ओनली पावर द पावर टू रिपील दिस एक्ट, द पावर टू अमेंड दिस एक्ट, अगर 252 आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना लिया, इट कैन नॉट बी रिपील्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एवर, it can never be amended by the state government ever, they have to again request the parliament, so parliament can do। ठीक, तो ये कुछ प्रोविजन है इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं सिमिलर कंडीशन का एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट को पावर मिलती है स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट बनाने की। पहला है, राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शैल पास अ लॉ टू फॉर अ स्टेटलेस सब्जेक्ट। ठीक, राज्यसभा क्यों कर रही है? बिकॉज ऑब्वियसली वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास करने की वजह से पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दो डायमेंशन हमें कंपेयर करना है। एक, इस लॉ की वैलिडिटी क्या होगी। सेकेंडली, वी शुड नो कि अगर पार्लियामेंट को ये परमिशन मिल गई है, तो क्या साइड बाय साइड स्टेट लेजिस्लेचर भी एक्ट बना सकता है, राइट? तो इन दोनों पैरामीटर पे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो राज्यसभा वाला जो केस है, इसमें देखिए ये लॉ जो है परमानेंटली वैलिड नहीं रहता, राइट? ये रिजोल्यूशन जब राज्यसभा पास करेगी, इस रिजोल्यूशन की वैलिडिटी होती है 1 साल, राइट? नाउ फ्रॉम द टाइम दिस रिजोल्यूशन लैप्सेस, 6 months आफ्टर दैट ये एक्ट भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, मान लो आज राज्यसभा ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि इन द नेशनल स्टेट इंटरेस्ट पार्लियामेंट शैल पास अ लॉ फॉर अ पर्टिकुलर स्टेटलेस सब्जेक्ट, ये रेजोल्यूशन 1 साल तक वैलिड रहेगा, और उस 1 साल के बाद 6 महीने और आगे जोड़ लीजिए, दैट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट फॉर स्टेटलेस सब्जेक्ट दैट विल बिकम इनऑपरेशनल। ठीक, अच्छा, क्या इस दौरान पे स्टेट लेजिस्लेचर उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है? यस, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। सेकंड केस इज कि आपके 2 से ज्यादा स्टेट ने रिक्वेस्ट किया, जो अभी हमने देखा। इन दिस केस दिस लॉ डज नॉट हैव एनी वैलिडिटी, दिस विल रिमेन ऑपरेशनल टिल द टाइम इट इज रिपील्ड बैक। अच्छा, ऐसा कर दिया, क्या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है लॉ? नहीं, उस सब्जेक्ट पे नहीं बना सकता। सेकेंडली, क्या उसे अमेंड कर सकता है? नहीं। उसे रिपील कर सकता है? नहीं। ऑल दैट पावर गोज टू पार्लियामेंट। थर्ड केस इज आपका नेशनल इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी में ऑल ऑफ यू नो कि ये जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट, दैट इज नॉट वैलिड फॉर एवर। 6 months आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी दिस लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट। क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है? यस, इट कैन मेक अ लॉ, राइट? बट अगेन कॉन्फ्लिक्ट के केस में पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। लास्ट इज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के केस में अब थोड़ा सा ये मिक्सचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। ठीक, इस लॉ की वैलिडिटी क्या होगी? क्या ये प्रेसिडेंट रूल के 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, इट विल रिमेन वैलिड फॉर एवर अनलेस एंड अनटिल रिपील्ड। बट इसे रिपील करने की पावर किसके पास है? इसे अमेंड करने की पावर किसके पास है? सो इन दिस केस स्टेट लेजिस्लेचर विल गेट देयर पावर बैक वंस प्रेसिडेंट रूल हैज बीन एबॉलिश्ड। ठीक, तो ये केस सीवियर है, मोस्ट सीवियर है, जब स्टेट लेजिस्लेचर ने खुद पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करके लॉ बनाया है। दे हैव दे डू नॉट हैव एनी पावर आफ्टर दैट रिक्वेस्ट। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में दे विल हैव द पावर वंस प्रेसिडेंट रूल इज एबॉलिश्ड। ठीक, तो ये आपका कंपैरिजन है सिमिलर केसेस का। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ईवीएम का क्वेश्चन है, सो दैट माइट हैव कंफ्यूज ए और बी में। आई एम अज्यूमिंग कि सही है दोनों स्टेटमेंट, तो पता चल गया होगा आपको। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ईवीएम्स आर नॉट यूज्ड इन वोटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सही बात है, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए हम ईवीएम यूज नहीं करते हैं, ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए करते हैं और ना ही राज्यसभा के लिए करते हैं।
ठीक. The second statement says, according to the Constitution of India, voting in the presidential election shall be through a secret ballot. सही बात है. बट क्या सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है? नहीं भाई, सीक्रेट बैलेट का ईवीएम से क्या लेना देना है? ईवीएम से ज्यादा सीक्रेट क्या है? राइट, ईवीएम इटसेल्फ इज अ वेरी सीक्रेट थिंग. सो this is not the reason why we do not use EVM for presidential election or for that matter Rajya Sabha ka election. The reason is this: EVMs are designed, the EVMs that we have are designed for first past the post system, जिसमें एक कैंडिडेट, एक वोटर एक ही कैंडिडेट को वोट दे सकता है, राइट? बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड राज्य सभा? अ सिंगल वोटर हैज टू फिल हिज प्रेफरेंसेस, मल्टीपल प्रेफरेंसेस, कि ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है. ईवीएम इसके लिए डिजाइन नहीं की गई है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट? दैट इज द ओनली रीजन इट इज नॉट यूज्ड. ठीक. अच्छा, बाय द वे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे देख लीजिए. एक, आई टोल्ड यू दैट ईवीएम्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट एज वेल एज आपका राज्यसभा का इलेक्शन. सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब होता है? बाय द वे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सीक्रेट बैलेट ओनली फॉर 2 इलेक्शंस, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है व्हेन समवन कास्ट्स अ वोट, इट विल नॉट बी विजिबल, इट विल नॉट बी टोल्ड टू एनीवन एल्स, राइट? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जब हमारे लेजिस्लेटर, एमपीज, एमएलएस दे वोट, राइट, दिस इज नॉट शोन टू एनीवन, उनकी पार्टी को नहीं पता चलता है. एंड दैट इज व्हाई एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. बट व्हाट अबाउट राज्यसभा का इलेक्शन? मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि यहां भी सीक्रेट बैलेट होता है. सो यू शुड गेट दिस थिंग क्लियर. 1998 के पहले, आई थिंक, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर जब ये हटाया गया था, बट देयर इज अ वेरी फेमस केस जहां पे बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई थी. देखिए, जब सीक्रेट बैलेट होता है तो पार्टी डज नॉट नो कि हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो किस पार्टी को वोट करेंगे, राइट? तो बहुत सारी क्रॉस वोटिंग होती है एंड क्रॉस वोटिंग में ब्राइबरी और इन सब का रिस्क रहता है. सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड इज कि आफ्टर दैट इंसिडेंट अ बिल वाज ब्रॉट, आरपीए को अमेंड किया गया और ये बोला गया कि राज्यसभा में ओपन बैलेट से वोट हो सकता है. सो द करंट सिचुएशन इज दिस कि राज्यसभा में ओपन बैलेट से वोट हो सकता है. ठीक, बट अर्लियर इनिशियली इट वाज ओनली थ्रू सीक्रेट बैलेट. नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है दैट इज वेरी दैट मेक्स दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट. बट क्या यूपीएससी डायरेक्टली इस फॉर्मेट में पूछेगी? चांसेस कम है. ठीक, बट द पॉइंट इज कि यूपीएससी ने भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट था? फॉर एग्जांपल, 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजन एक्सपेरिमेंट था. नाउ समटाइम्स स्टूडेंट माइट फील कि यार ये एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्या है. आई टेल यू वन एग्जांपल. अर्लियर आल्सो आई हैव टोल्ड दिस थिंग. तो ना, लास्ट अनुभव में व्हाट वी डिड इज कि अनुभव 5 में यू कैन गो बैक एंड चेक द पेपर. अनुभव 5 में हमने एक क्वेश्चन डाला था 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजन का. एट दैट टाइम समवन माइट थिंक यार ये न्यू फॉर्मेट क्यों डाल रहे हो? द आइडिया वाज दैट वी वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस. सरप्राइजिंगली यूपीएससी ने उसी पर्टिकुलर ईयर में ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, ये फॉर्मेट. वी वर नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट यूपीएससी, दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ थिंग, राइट? आप कभी यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. ऑल यू कैन डू इज टू मेक स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस. सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मेट, राइट? चलिए बात करते हैं. देखिए, जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, सेलियंट फीचर, वो तो आप पढ़ते ही है और वो यूपीएससी पूछ चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं, यूनिटरी के क्या है, ये सब पूछा जा चुका है. द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इज आपका फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाजू में लिख लेते हैं ये किसका फीचर है, किस गवर्नमेंट का, एंड देन वी विल कम एट दी ऑप्शंस. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता है. हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम. क्या पीएम का फिक्स टर्म होता है? नहीं, पीएम डज नॉट हैव एनी टर्म. टर्म तो होता है लोकसभा का. लोकसभा का 5 ईयर टर्म होता है. Prime Minister does not have a fixed term. He is there in the office till the time he enjoys the confidence of the Lok Sabha. ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. By the way, I met certain students जो ये कह रहे थे कि लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता ही नहीं है, उसमें तो हेड ऑफ द स्टेट होता है. ये बात गलत है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम पोस्ट होती है. पार्लियामेंट्री में हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंशियल में सेम है एंड दे हैव अ फिक्स्ड टर्म, राइट? तो उनका एक फिक्स टर्म है कि वो इतने साल के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं. ठीक, तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का. सेकंड स्टेटमेंट कहता है लेजिस्लेचर होल्ड सुप्रीम पावर एंड कैन पास एनी लॉ विदाउट जुडिशियल रिव्यू. इसका मतलब ये
पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, राइट? एक बात बताइए, फेडरल कंडीशन की, फेडरल गवर्नमेंट की आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सुप्रीम किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के लिए, राइट? क्यों ऐसा होता है? फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? देयर आर टू यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच आर डिराइविंग द पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा तो इस डिवीजन ऑफ पावर का तो कोई मतलब ही नहीं बच जाएगा, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर सेकंड सही है तो ये फेडरल तो नहीं हो सकता, ये यूनिटरी होना पड़ेगा, ठीक? इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो फेडरल तो नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक जनरल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब डेमोक्रेसी है, दैट्स इट। फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, फेडरल कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। ये तो फेडरलिज्म का फीचर ही है। फेडरलिज्म में हम कहते हैं ना कि भाई अगर दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट होगा, कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी सॉल्व करेगी, राइट? जो यूनियन लेवल पे बैठी है। तो ये तो फेडरलिज्म का फीचर है ही है। अब आ जाते हैं, गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेचर एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस बिफोर इट टर्म्स एंड। एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेचर को, ये कब होता है? पार्लियामेंट्री में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल में तो सेपरेशन पावर है, राइट? दोनों सेपरेट है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, बट इन आवर केस प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, राइट? अब एक एक करके देखते हैं। तो देखो, पहला स्टेटमेंट अगर कहीं भी है तो प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। अब देखते हैं पहला कहां का है। सो पहला बी में है और वो कह रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट? फर्स्ट इज प्रेजेंट एंड इट इज सेइंग दैट इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये नहीं वैलिड है। अगर फर्स्ट कहीं भी होगा, इट शुड बी अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। फिर देखते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट, तो स्टेट इज लाइकली टू हैव अ फेडरल डेमोक्रेसी। हमने देखा इफ सेकंड इज करेक्ट, आप फेडरल नहीं हो सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है सेकंड से फेडरल, ये पॉसिबल नहीं है। देन कम्स थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इफ दे आर करेक्ट, स्टेट इज लाइकली टू हैव अ फेडरल डेमोक्रेसी विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये बात थोड़ी थोड़ी सही लग रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। थर्ड सही है तो डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये भी बात सही है। फोर्थ अगर सही है तो फेडरल होना चाहिए, तो इट्स अ फेडरल डेमोक्रेसी विद अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सही है। डी पे आ जाते हैं, इसको भी रिजेक्ट कर लेते हैं। 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट, तब क्या होगा? तो अगर 3 करेक्ट होगा तो इसका मतलब डेमोक्रेसी, वो तो चलो ऑब्वियस ही बात है। फोर्थ अगर होगा तो इट शुड बी अ फेडरल डेमोक्रेसी, ये भी ठीक है। लेकिन 5 अगर होगा तो इट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो यहां पे तो लिखा है प्रेसिडेंशियल, राइट? तो फिफ्थ के साथ प्रेसिडेंशियल नहीं जाएगा, दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग, राइट? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अगर आपने देखा होगा तो कॉन्सेप्ट आपको पता था, द ओनली थिंग व्हिच वाज डिफरेंट वाज द फॉर्मेट। चलिए, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप ये लास्ट ही है, चेक कर लेते एक बार। हाँ, लास्ट ही है क्वेश्चन, ठीक? सो आई होप दैट यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड द सेशन हेल्प्ड यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अनुभव्स एंड ऑल्सो UPSC.